Hi student, this video is based on quadratic equation solution by factorization and using quadratic formula. 4.1 question number 2. The area of rectangular plot is 528. The length of the plot is 1 more than twice its breadth. We need to find length and breadth of the plot. Okay, so question number 2, first part. So let length, because we need to find length and breadth, so let length be x meters and breadth of the plot be y meters. What is given? Area of rectangular plot. What is area of rectangle? So area of rectangle is length into breadth. So we have first equation given to us is area, which is length into breadth, is equal to 528 meters square. So this is our first equation. And one more thing is given, the length of the plot is 1 more than twice its breadth. What is length? X. Length of the plot is equal to 1 more than, 1 more means plus, then twice its breadth. Breadth is how much? Y. 2 times of breadth. Twice its breadth means 2 times of breadth. So this is second equation. Now substitute x value, which is 1 plus 2y, in first equation. You will get quadratic equation. So substituting 2 in 1, we will get x into y is 528. So in place of x, write 1 plus 2y into y. Okay, multiply y plus 2y square is 528. Just rearrange it, write in quadratic equation form, means 2 power first, then 1, and bring 528 this side. Okay, now this is a quadratic equation. Solve this equation and find solution. Two ways in which you can solve this problem. First one is splitting the middle term और दूसरा है by using formula. तो मैं दोनों से तुम्हें solve करके बता देती हूँ. जब भी word problem आता है वहाँ को specify नहीं किया रहता कि तुम किस method से solve करो. So you can use any method. So पहले splitting the middle term देख लेते हैं. So we have a is coefficient of y square. जो x square y square term रहती है उसका जो coefficient है उसको हम a से represent करते हैं. Then b is coefficient of y x जिसकी पावर 1 है, तो उसका कोएफिशिएंट यहाँ पे +1 है, कोई भी नंबर नहीं है मतलब दिस इज +1, एंड c इक्वल्स टू -528. नाउ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में जो मिडल टर्म है दैट इज +y इन दिस केस, उसको हम रीराइट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ टू नंबर्स इन सच अ वे दैट जब हम उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू a इंटू सी के बराबर होनी चाहिए, और जब हम उनको ऐड करें तो उनकी वैल्यू b के बराबर होनी चाहिए. सो प्रोडक्ट इज a इंटू सी, दैट इज़ 2 इंटू -528, एंड सम इज़ b. So 2 into -528 is product. Okay, so multiply कर लो उसको, and sum is b, so b equals to 1. So हम ये सब इसलिए करते हैं so that we can factorize the equation. So this is -1056 is product and sum is 1. Okay, now we'll find two number whose product is -1056 and sum is 1. So product is negative and sum is positive means, when product is negative means naturally one number is negative, other number is positive, and sum is positive means bigger number is positive. That's why when we add one negative number and other positive number, basically one is a negative and other number is positive, we subtract and put bigger number sign. तो अभी हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट 1056 है, और जब हम उनको ऐड करें उसमें से एक नंबर नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, जब हम उसको ऐड करें तो हमारा आंसर 1 आना चाहिए. सो लेट्स सी दैट. नाउ टू फाइंड टू नंबर्स विल फैक्टराइज 1056. पहले फैक्टर बनाते हैं, देखते हैं उसके, एंड देन कॉम्बिनेशन ढूंढेंगे जिससे हमें ऐसे दो नंबर मिल जाएं जिसका प्रोडक्ट लाइक 1056 हो और सम 1 हो. सो इसको फैक्टराइज करेंगे. 2 into 2 528, देन अगेन इट विल गो बाई 2
264, again it will go by 2, 132, then 266, 233, then it will go by 3. ओके, सो इसको हमने फैक्टराइज कर लिया है. सो अब हम इसका ट्रायल एंड एरर देखते हैं. तो पहले देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. 2 इंटू 2 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32. ओके, and 3 into 11 33 means 32 into 33 will give you 1056. We need minus 1056, so we can take minus 32 into 33. So if you take minus 32 into 33, so when you add these two you will get one answer, 1056. इन्हीं सबको मल्टीप्लाई करके हमें ये मिलेगा ना. सारे 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे हमें 32 मिलेगा, और 3 इंटू 11 को मल्टीप्लाई करेंगे हमें 33 मिलेगा. सो 2 नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 1056 माइनस 1056 मिलेगा वो है माइनस 32 इंटू 33. छोटे नंबर के आगे माइनस साइन लगा रही हूँ बिकॉज व्हेन वी ऐड दिस, जब भी एक नंबर नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, बड़े नंबर का साइन लगाते हैं और हमें +1 चाहिए. सम हमें क्या चाहिए, +1 चाहिए. ठीक है, सो इसको हम री राइट करेंगे. 2y स्क्वायर, यहाँ पे हम ले लेते हैं माइनस 32y प्लस 33y माइनस 528. ओके, इक्वल्स टू 0. अब इन दोनों में से लाइक टर्म और इन दोनों में से लाइक टर्म्स निकालना है. यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 और y लाइक टर्म आ जाएगा, अंदर बचेगा y. नाउ माइनस 32 में डिवाइडेड बाई 2y, सो यू आर लेफ्ट विथ y बाहर आ गया और 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वहाँ बचेगा सिर्फ 16. सो y माइनस 16 आ जाएगा अंदर. नेक्स्ट पेयर में कॉमन निकालना बहुत इजी है क्योंकि तुम्हें पता है ब्रैकेट के अंदर y माइनस 16 ही आएगा. दूसरे ब्रैकेट में भी कॉमन निकालने के बाद y माइनस 16 ही आएगा. तो व्हाट इज़ कॉमन, 33, क्योंकि 33 इंटू वाई और y अंदर आएगा इनसाइड द ब्रैकेट. सो जस्ट यू राइट 33 y माइनस 16. चेक कर सकते हो, 33 इंटू 16 यू विल गेट 528. यू कैन चेक इन रफ. नाउ 2y y माइनस 16 और 33 इंटू वाई माइनस 16 में हम कॉमन निकालेंगे. सो व्हाट इज़ कॉमन इन दैट, अगर देखेंगे तो y माइनस 16 कॉमन है. सो टेक y माइनस 16 आउट. व्हाट इज़ लेफ्ट इनसाइड, 2y प्लस 33. सो यहाँ से हमने इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर लिया. So we'll get factorized form y minus 16 into 2y plus 33 equals to 0. Now ये this is equal to 0, इसका मतलब क्या है, याद आइदर y minus 16 0 है या फिर 2y plus 33 0 है. दोनों में से कोई एक 0 है, तभी पूरा आंसर 0 हुआ है. So we have condition y minus 16 is 0 और 2y plus 33 equals to 0. सो यहाँ से हमें दो आंसर मिलेंगे, y इक्वल्स टू 16 और 2y इक्वल्स टू माइनस 33. सो y इक्वल्स टू माइनस 33/2. अब y की वैल्यू पॉजिटिव ही हो सकती है, देयरफॉर y इक्वल्स टू 16 हम लेंगे. y इक्वल्स टू माइनस 33/2 हम डिस्कार्ड करेंगे. दिस वैल्यू विल सब्सटीट्यूट इन एनी ऑफ द इक्वेशन टू गेट x. तो सेकेंड इक्वेशन में डाल देते हैं x इक्वल्स टू 1 प्लस 2y. सो सेकेंड इक्वेशन में डाल देते हैं x इक्वल्स टू 1 प्लस 2y. सो वी गेट x इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू 16. सो x इज़ 1 प्लस 16 2 ज़ा 32. सो x इज़ 33 meters and y is 16 meter. So y is breadth is 16 meter while length is 33 meters. दूसरा मेथड देखते हैं जिससे हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो पहला जो हमने किया उसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं. अब ये दूसरा मेथड है, ये डायरेक्टली यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. नाउ क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, यहाँ पे हमें y फाइंड करना है. देन y इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू a. सो इस फॉर्मूला में डायरेक्टली फाइंड करके हम y की दोनों वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं. जो दो वैल्यूज़ हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फैक्टराइजेशन से फाइंड की थी पहले, वो हम डायरेक्टली यहाँ ऐसे फाइंड कर सकते हैं. इस क्वेश्चन में एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट तुम्हें इक्वेशन बनाने के लिए बोला गया है, लेकिन बेटर तुम इसको सॉल्व भी कर लो बिकॉज व्हेन चैप्टर इज़ ओवर देन योर टीचर विल टेल यू टू सॉल्व दीज इक्वेशंस ऑल्सो. ओके, सो y इक्वल्स टू minus b is 1, so minus 1 plus minus
b square is 1 square minus 4 into a is 2 into minus 528 divided by 2 into 2. ओके तो इसमें एक है कि तुम्हें स्प्लिट करने के लिए किन दो नंबर्स को ऐड करके वी गेट सम एंड किसको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट, वो सब ढूंढने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली यू विल गेट आंसर. ना ये माइनस इंटू माइनस ध्यान रखो, प्लस हो जाएगा. देन 8 इंटू 528 इज 8 8 64 to the 16 22 8 5 40. ओके सो 4224 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4. सो y इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 4225 डिवाइडेड बाय 4. ये रूट फाइंड करना आना चाहिए तुम्हें, रूट फाइंड कर लो, तुमने ऑलरेडी सीखा है 8th स्टैंडर्ड में. यू कैन यूज़ फैक्टराइजेशन मेथड और डायरेक्टली फाइंड कर लो रूट ऐसे, या फिर फैक्टराइजेशन से कर लो, जैसे तुम्हारी मर्जी. तो इसमें पेयर करना है पीछे से, नियरेस्ट स्क्वायर वैल्यू देखनी है. सो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 इज़ 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49. सो 6 नियरेस्ट है, 6 6 थर्ड नियरेस्ट और स्मॉलर रहना चाहिए उससे. सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट 4 5 6. ओके देन ब्रिंग दिस पेयर डाउन, फुल पेयर नीचे लाना है. 25 फिर से यहाँ पर एक ऐसा बनाना है, डबल इट, जो भी आंसर आया था उसको डबल कर दो. 12. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे हम एक नंबर रखेंगे, जो नंबर रखेंगे उसी से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे ना. यहाँ पे 5 है, सो विल ट्राई विथ 5. सो यहाँ 5 देन मल्टीप्लाई विथ 5 ओनली, सो विल गेट 625. सो दिस इज 5, राइट हियर 5, 625. So you got answer 65. So y equals to -1 plus minus, what is root 4225? 65 by 4. Okay, so y is -1 plus minus 65 by 4. So इसकी दो वैल्यूज रहेंगे, either y is -1 plus 65 by 4 और y is -1 minus 65 by 4. Okay, so you'll get y equals to 64 by 4. -1 plus 65, एक नंबर नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, वी सब्ट्रैक्ट बिगर नंबर साइन, इसलिए प्लस 64 by 4. 16, y is 16, यहाँ पे y मिलेगा -66 by 4, सो -33 by 2. तो सेम वैल्यूज आई जो हमें पिछले मेथड्स में आई, सेम ही वैल्यू आएगी. सो आइदर यूज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और फैक्टराइजेशन, और you can use formula directly. Only thing you should know how to find root of any number. Sometime इतना बड़ा नहीं आता, रूट 36 आ जाता है, रूट 49 आ जाता है, जो बहुत easy होता है कैलकुलेट करना. So here this is y is 16, so use that value because here y is -33 by 2, breadth माइनस में नहीं हो सकती है, so we'll discard this value. So breadth is 16 meters, and then second part is same, substitute in the any of the equation to find x, that is length. So length आई थी हमारी 33 meters. Okay, now next is the product of two consecutive positive integer is 306. We need to find the integers, consecutive integer, for example 2 and 3, 2 और उसके बाद 3 आता है, that is consecutive integers. तो let integers be, let consecutive integers be x and x plus 1. अगर पहला x है तो दूसरा x plus 1 होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर पहला 6 है तो दूसरा 7 होगा, 6 plus 1 7. सो दैट इज मीनिंग ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स. ना उन्होंने कंडीशन क्या दी है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306. अब इन दोनों को प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर मिलेगा इक्वल्स टू 306. ओके, इनको मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 इज x. तो इसमें हमें दो इक्वेशन की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी इसी को मल्टीप्लाई करके हमें मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, तो कभी भी रीअरेंज कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ब्रिंग कांस्टेंट ऑल्सो दिस साइड इक्वल्स टू 0. नाउ वैल्यू ऑफ a इज 1, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, value of b is also 1, coefficient of x is 1,
and C is minus 306. So always remember, you have to bring everything this side of the equal to, then only you can take A, B, C value. अगर तुमने उधर ही रहने दिया 306 और C को पॉजिटिव ले लिया, पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. नाउ फर्स्ट मेथड इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. उसमें हम प्रोडक्ट क्या लेते हैं, A इंटू सी. A इंटू सी क्या है, 1 इंटू माइनस 306, दैट इज़ माइनस 306. प्रोडक्ट आ रहा है नेगेटिव 306 एंड सम क्या होता है, सम इज़ B, सम इज़ हाउ मच, 1. तो ये भी पिछले क्वेश्चन जैसे ही है, सम पॉजिटिव है, प्रोडक्ट नेगेटिव है, मतलब एक नंबर नेगेटिव होगा, दूसरा नंबर पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव वाला नंबर जो होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि तभी हम उनको ऐड करने से हमें सम पॉजिटिव मिलेगा और मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट नेगेटिव मिलेगा. ठीक है, तो कभी भी प्रोडक्ट नेगेटिव है मतलब एक नंबर उसमें से नेगेटिव है और दूसरा नंबर पॉजिटिव है, एंड देन सम आइदर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. ऐसे क्वेश्चन में जिसमें प्रोडक्ट नेगेटिव है उसमें सम या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा. वो किस पे डिपेंड करेगा, जब जो दो नंबर को मल्टीप्लाई करके तुम्हें प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें से अगर बड़ा नंबर पॉजिटिव है तो सम पॉजिटिव होगा, अगर बड़ा नंबर नेगेटिव है तो सम नेगेटिव होगा. ठीक है, तो यहाँ पे सम पॉजिटिव है मतलब बड़ा नंबर पॉजिटिव है. अब हमें फाइंड करना है कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमें 306 मिल रहा है और उनको माइनस करने से हमें +1 मिलेगा, क्योंकि एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है, तो नेचुरली व्हेन वी ऐड मीन्स बेसिकली वी आर सब्ट्रैक्टिंग. तो सेम पिछले क्वेश्चन जैसे इसका हम फाइंड कर लेंगे. सो प्रोडक्ट इज़ 306, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो ईजी होता है. 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, फिर 3 से जाएगा. ओके, फिर से 3 से जाएगा. अभी देखते हैं. 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 इंटू 17. तो मिल गया हमें यहाँ पे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 306 आएगा. ठीक है, तो अब इसमें से सो 9 9 2 ज़ा 18, सो नंबर्स हो गए 18 एंड 17. ठीक है, सो विच वन इज़ नेगेटिव, 17 इज़ नेगेटिव. वाई, बिकॉज सम इज़ पॉजिटिव. whenever product is negative, one number is negative, understood, and sum is positive means bigger number is positive. Now इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर. जो मिडिल टर्म है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो मिडिल टर्म है उसको हम मॉडिफाई करके लिखेंगे. कैसे, प्लस 18x, जो हमने ये दो नंबर ढूंढे उसी के लिए ढूंढे हैं, 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0. तो हमने क्वेश्चन नहीं चेंज किया है, करेक्ट, बिकॉज क्वेश्चन सेम रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए. एक्स स्क्वायर, बस हमने मिडिल टर्म को दूसरे तरीके से लिख दिया, स्प्लिट करके दूसरे तरीके से लिख दिया. सो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दिस यू विल गेट 1x. व्हेन यू सॉल्व दिस 18x माइनस 17x यू विल गेट 1x. सो हमारी इक्वेशन नहीं चेंज हो रही है, जस्ट हम उसको डिफरेंट तरीके से लिख रहे हैं टू फैक्टराइज द इक्वेशन. नाउ टेक x कॉमन, सो यहाँ पे बचेगा x प्लस 18. एक्स स्क्वायर मीन्स x इंटू एक्स एंड दिस इज 18 इंटू एक्स. व्हेन यू टेक x कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट इन साइड x, एक x अंदर बच जाएगा और 18 बच जाएगा. नाउ हमें x चाहिए, पॉजिटिव x अंदर, तो यहाँ से माइनस 17 को कॉमन निकाल लो, क्योंकि माइनस 17 ही x के साथ है. सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद x. अब तुमने माइनस साइन बाहर निकाला है, 17 बाहर निकाला है, यहाँ पे क्या बचेगा 18. यहाँ से ही तुम्हें समझ में आ जाएगा अंदर क्या बचेगा 18. तुमको चाहिए तो 17 इंटू 18 करके देख लो. एनीवे यू विल गेट 306, यू नो दैट 17 इंटू 18 इज 306. ओके, सो माइनस 17 हम बाहर निकालेंगे. क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या, यहीं से तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाएगा. x प्लस 18 है ना, यहाँ पे x आना चाहिए, करेक्ट. तो यहाँ से माइनस 17 बाहर, जो भी x के साथ है वही बाहर आ जाएगा. माइनस 17 बाहर निकाल लो, अंदर बचेगा यही सेम चीज़ बचेगा x प्लस 18. भाई अभी तुम चेक भी कर सकते हो. माइनस 17 बाहर निकाला, यहाँ क्या बचा x, माइनस साइन बाहर, 17 इंटू 18 इज 306. ओके, तो जो इधर रहेगा वही इधर आएगा अगर तुमने सब कुछ सही किया है. तो जो इधर बाहर निकालोगे तो पहला वाला अच्छे से निकालो, दूसरा वाला फास्ट हो जाता है. नाउ टेक दिस कॉमन, x प्लस 18 दोनों के साथ सेम है, और यहाँ पे बचेगा x माइनस 17 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0, तभी ये पूरा 0 हो सकता है. सो आइदर x प्लस 18 इज 0 और x माइनस 17 इज 0. तो यहाँ से हमें x मिलेगा माइनस 18, फ्रॉम हियर विल गेट x एस प्लस 17. सो दिस इज करेक्ट. वाई दिस इज करेक्ट,
क्योंकि पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है. सो ये तो नेगेटिव हो जाएगा. सो दिस वी डिस्कार्ड. सो इंटीजर्स आर 17, x is 17 and next one is x plus 1, that is 18. So two integers are 17 and 18. चलो अब नेक्स्ट मेथड देखेंगे. दैट इज़ फार्मूला. यूजिंग फार्मूला a is 1, b is 1, c is minus 306. सो व्हाट इज़ फार्मूला? x इक्वल्स जो जिस भी टर्म में इक्वेशन रहेगी वही लेना है. यहाँ पे x की टर्म में तो x लेंगे. x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. So we'll get that is equal to minus b minus 1 plus minus root of 1 square minus 4 into 1 into minus 306 by 2 into 1. So वहाँ से आएगा minus 1 plus minus root of 1. देखो माइनस इंटू माइनस प्लस है, वो ध्यान रखना है. 6 4 जा 24, 1 2 2 4 by 2. Okay, so that is equal to minus 1 plus minus root of 1225 by 2. Now root of 1225 find करेंगे. तो let's find it. So root of 1225 पेयरिंग करो. पीछे से पेयरिंग शुरू करना है. कई बार ऐसा होगा कि 5 नंबर होंगे तो एक बच जाएगा, तो नो प्रॉब्लम. फिर उसका हम नियरेस्ट स्क्वायर देख के करेंगे. तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास एक ही नंबर बचे ना. यहाँ पे तो इवन नंबर है. सो 12 25 में पीछे से 2 पेयर्स बन जाएंगे हमारे. एक 12 एक दूसरा 25. फर्स्ट का नियरेस्ट देखो. 3 3 जा 9. नियरेस्ट एंड स्मॉलर नियरेस्ट स्क्वायर नंबर. ओके, सो 3 3 जा 9. सो वी गेट 3. ब्रिंग 25 डाउन. 325. उसके बाद क्या करना है, ये जो ऊपर 3 आया इंटू 2 कर दो. सो 6. फिर एक फिल इन द ब्लैंक्स के आगे डाल दो. अब यहाँ पे जो नंबर डालोगे फिल इन द ब्लैंक्स में उसी से इसको मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पे 5 है तो विल ट्राई विथ 5. 6 यहाँ पे 5 डाल दो. सो विल गेट 32. या वी आर गेटिंग. सो 65 ऊपर 5 लिखो. 325 subtract 0. So what is root 1225? 35. So if you know how to find root, this question is very easy. Using formula you can easily find values. So x is minus 1 plus 35 by 2 or x is minus 1 minus 35 by 2. Okay, so यहाँ से आ जाएगा 34 by 2. So 17 और यहाँ से आ जाएगा minus 36 by 2, that is minus 18. जो पिछले मेथड से आंसर्स है वही आंसर आएगा. ओनली थिंग दिस इज ईजी मेथड. ओनली थिंग यू शुड नो हाउ टू फाइंड रूट. So x is 17 will take this, minus 18 will discard because it is given that these two are positive integers. So x is 70 and the two values are x and x plus 1. So two numbers positive integers are consecutive positive integers are 17 and 18. Now next question. Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in year 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. Okay, so Rohan's mother age is 26 years older than him. तो प्रेजेंट में क्या बताया है कि रोहन की मदर उससे 26 years older है. So let present age of Rohan be x years. Okay, and then present age of Rohan's mother will be how much? She is 26 years older than him, so it will be x plus 26 years. Okay, so अगर हम रोहन की एज x ले रहे हैं, मदर 26 years older है, उससे बड़ी है 26 years, so मदर हो जाएंगी x plus 26. Okay, the product of their ages 3 years from now, मतलब after 3 years इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट विल कम हाउ मच? 360. ओके, सो दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो 3 years फ्रॉम नाउ. यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, ये प्रेजेंट एज को ही मल्टीप्लाई करके 360 लिख देते हैं. दैट इज़ रॉन्ग. उन्होंने बोला है 3 साल बाद. सो फाइन आफ्टर. सो कभी भी एक्स की टर्म्स में एक बार लिख लो. आफ्टर 3 years कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होता. रोहन विल बी x प्लस 3 एंड मदर कितनी होगी आफ्टर 3 years? x प्लस 26 प्लस 3. अब ये दोनों नंबर्स हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. सो दिस विल बी x प्लस 29. ओके, सो रोहन होगा x प्लस 3, मदर होगी x प्लस 29. नाउ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू x प्लस 3 इंटू x प्लस 29
इज़ 360। यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी ना। इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, x को x प्लस 29 से मल्टीप्लाई करो और 3 को प्लस 3 को भी x प्लस 29 से मल्टीप्लाई करो. सो x इंटू x को दिस फुल ब्रैकेट देन प्लस 3 दिस फुल ब्रैकेट. सो x इंटू x प्लस 29 प्लस 3 इंटू x प्लस 29 तुम्हारा. सो x इंटू x प्लस 29 साइन का ध्यान रखना, यहाँ तो सारा पॉजिटिव है सो नो प्रॉब्लम, प्लस 3 इंटू full bracket. Okay, so this will be x square plus 29x plus 3x plus 3 into 29, 9 3 is a 27, 2 3 2 is a 6, 7 8. Okay, equals to 360. like terms को solve कर लो. x square 29 plus 3 कितना होता है, 29 30 31 32, 32x 360 को इस तरफ लाओ, सब कुछ इक्वल टू किस तरफ होना चाहिए, माइनस 360 इक्वल्स टू 0. ओके, इन दोनों को माइनस कर लो. 360 माइनस 87 विल बी 3. यहाँ से 10 5 15 7 273. सो गेट एक्स स्क्वायर प्लस 32x. ओके, नाउ 273 प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये प्लस है, एक नंबर प्लस अदर नंबर नेगेटिव, वी सब्ट्रैक्ट एंड बिगर नंबर साइन. तो कभी भी साइन पहले लिख लिया करो. तो यहाँ पे साइन माइनस आएगा और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमें 273 मिल रहा है. ओके, नाउ विल यू स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पहले, फिर उसके बाद मैं फॉर्मूला से भी बता दूंगी. बट कभी भी वर्ड प्रॉब्लम आता है तो इन एग्जाम दे विल नॉट स्पेसिफाई विच मेथड यू शुड, यू कैन यूज एनी मेथड योर विश. ओके, सो इसमें a इज़ 1, b इज़ 32 एंड c इज़ माइनस 273. तो हमारे पास प्रोडक्ट है a इंटू सी. So 1 into 27 minus 273 is minus, so 273 now product. Again ये उसी टाइप का क्वेश्चन है. sum is b, so sum is b which is 32 and product is minus 273. Now same just like previous question, product is negative and sum is positive, so one number is positive, other number is negative, as sum is positive so bigger number is positive. So पिछले क्वेश्चन जैसे ही हम 273 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे to find two number whose product is minus 273 and sum is 32. 273 का हम let's find 3 9 उसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं. 3 9 20 से 3 1 जा 3. अब ये 3 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा. 7 1 जा 7, 3 जा 21 एंड देन 13 1 जा. सो वी नो दैट सम 32, 7 3 जा 21 एंड 13 से नहीं मिलेगा. 21 माइनस 13 यू विल नॉट गेट 32. सो 39 माइनस 7 यू विल गेट 32. सो टू नंबर्स आर 39 एंड 7. ओके, so two numbers are 39 and 7. When you multiply you will get 273. Which one is negative? Smaller number is negative. So two numbers are 39 and minus 7. Okay, so इसमें हम splitting the middle term करेंगे. We'll do splitting the middle term. So x square plus 32x minus 273. So in place of 32 we'll write plus 39x minus 7x. So we are not changing the question, we are just rewriting 32x as 39x minus 7x. Okay, so that we can factorize minus 273 equals to 0. Okay, now take common from this x square plus 39x. This is x into x, this is 39 into x. Take x common. फिर यहाँ पे इजी हो जाएगा. यहाँ हमें x चाहिए, मतलब माइनस 7 बाहर आएगा. अंदर आँख बंद करके x प्लस 39. अगर तुमने पहला सही किया है तो दूसरा देखने की ज़रूरत नहीं है. ओके, माइनस 7 आएगा और ये जो x प्लस 39 ही आएगा ब्रैकेट में. सो ये वाला अच्छे से करो. नेक्स्ट वन विल बी ईजी टू सॉल्व. माइनस 7 बाहर ले लो, अंदर x प्लस 7. नाउ वी कैन टेक x प्लस 39 कॉमन. अगर x प्लस 39 कॉमन लेते हैं क्या बचा, x माइनस 7. ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, x माइनस 7. नाउ x प्लस 39 इज 0 और x माइनस 7 इज 0. सो यहाँ से हमें x मिलेगा माइनस 39, यहाँ से x मिलेगा 7. ओके,
नाउ एज तो -39 में नहीं हो सकती, तो उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो जो प्रेजेंट एज x क्या लिया था हमने, रोहन की प्रेजेंट एज, सो हमें डायरेक्टली रोहन x जो वैल्यू मिलेगी दैट इज़ रोहन्स प्रेजेंट एज। रोहन्स प्रेजेंट एज इज 7। दे आस्क्ड ओनली रोहन्स प्रेजेंट एज। अगर मदर की भी पूछते हैं तो देन यू ऐड 26 टू दैट एंड फाइंड मदर्स प्रेजेंट एज ऑल्सो। ओके, नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x is minus b plus minus root of b square minus 4ac divided by 2a. So we have minus b is minus 32 plus minus root of 32 square minus 4 into 1 into minus 273. कई बार splitting the middle term easy होता है, तो दोनों को प्रैक्टिस करो। फास्ट होता है कई बार स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये तुम्हारा फास्ट होगा इफ़ यू नो हाउ टू फाइंड रूट। ओके, सो देखो 32 स्क्वायर हम फाइंड कर लेते हैं। 32 इंटू 32, 2 is 4, 2 3 is 6, 3 2 is 6, 3 9 4 1024। सो 1024 एंड 4 इंटू 273 भी कर लेते हैं। 4 3 is 12, 7 2 is 4 3 is 12, 7 4 is 28, 29. Okay, so we have plus minus 1024, यहाँ ध्यान रखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 2। ओके, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, नहीं तो फिर तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। Now add these two, 1024 and this, you will get 2116. 2116 divided by 2. Okay, now 2116 का हम ये फाइंड कर लेते हैं। 21 is nearest to 4 4 is 16, 5 5 4 4 is 16। ओके, 16 5 माइनस करेंगे, 516, देन यू 4 इंटू 2 8, फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें 6 चाहिए। 6 किससे आएगा, 6 6 36 से आएगा या 4 4 16 से आएगा, चेक कर लेते हैं। 4 4 16 नहीं, 8 4 32 है, छोटा हो जाएगा। 6 से करते हैं, 6 6 36, 6 8 48, 49 51, so we got 46. Okay, so we'll get x equals to minus 32 plus minus 46 by 2. So we have x equals to minus 32 minus 46 by 2, or x equals to minus 32 plus 46 by 2. So यहाँ से हमें x मिल जाएगा 678 minus 78 by 2, so minus 39, and from here we'll get x as 14 by 2, so 7. So यहाँ से हमें present age of this by this method we'll get as 7. Now next question, a train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. You need to find the speed of the train. हमें स्पीड फाइंड करनी है। 2 केसेस दिया हुआ है, अगर वो एक पर्टिकुलर स्पीड से चल रही है देन इट इज़ टेकिंग सम टाइम, एंड इफ़ वी डिक्रीज दैट स्पीड बाय 8 किलोमीटर्स पर आवर देन इट विल टेक more time, and that more time is 3 hours. It will take 3 hours more to cover 480 kilometers. So case 1 और case 2 देखते हैं इसमें। So case 1 है let speed be, क्योंकि हमें speed find करनी है, let speed be x kilometers per hour, correct, and distance given is 480 kilometers. Okay, so time it will take to cover 480 किलोमीटर when train is traveling with x किलोमीटर्स पर आवर। तो इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखो, तो तुम्हें ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। जस्ट रिमेंबर DST, जस्ट GST होता है ना, उसी को याद रखो, G को रिप्लेस कर दो D से। सो DST। अब तुम्हें अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो स्पीड इनटू टाइम करो, स्पीड फाइंड करना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम फाइंड करना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो जस्ट शॉर्टकट है फॉर्मूलाज का। सो वी डोंट नो टाइम, सो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 480 एंड स्पीड इज x। सो हमें इसको फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन वी आर गेटिंग, दैट टाइम इज फर्स्ट केस टाइम इज 480 by x। नाउ केस 2 क्या दिया हुआ है, नाउ इन केस 2 डिस्टेंस इज सेम, it is covering same distance,
speed is reduced by 8 kilometers, x minus 8 kilometers per hour. Okay, now this time is, अगर वो x minus 8 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन चल रही है और 480 किलोमीटर्स ट्रेवल कर रही है, so what is time taken by train is distance upon speed. So distance is 480. So ये याद रखो, DST बहुत easy होता है. So 480 by x minus 8r. Okay, so ये सेकेंड वाले केस का टाइम है, ये फर्स्ट वाले केस का टाइम है 480 by x. अब क्या दिया हुआ है, ये टाइम इस टाइम से 3 घंटा ज़्यादा है, बिकॉज ये दिस इज़ टेकिंग, व्हेन स्पीड इज़ लेस इट इज़ टेकिंग 3 hours मोर. तो यहाँ पे ध्यान रखना है जब हम माइनस करते हैं, सो दिस इज़ T1 एंड दिस इज़ T2. So we have T2 is greater, minus T1 is 3. From here we will get equation. तो ये जो माइनस करते हैं T2 minus T1, यहाँ ध्यान रखना, अगर T1 minus T2 कर दिया क्वेश्चन गलत हो जाएगा. Now T2 is 480 by x minus 8 minus 480 by x is 3. ठीक है, और एक तरीका याद रखने का, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है उसको पहले लिखना है. x माइनस 8 इज़ लेस देन x, उसको पहले लिखना है. इट्स नेचुरल, इफ़ यू डिवाइड एनी नंबर बाय स्मॉलर नंबर यू विल गेट बिगर आंसर. सो सपोज तुम 10 को 2 से डिवाइड कर रहे हो, यू विल गेट 5. व्हेन 10 को 5 से डिवाइड कर रहे हो यू विल गेट 2. अगर छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो बड़ा आंसर आता है. तो बड़ा नंबर पहले लिखना है, माइनस छोटा नंबर इक्वल्स टू 3. वैसे भी क्वेश्चन से भी अंडरस्टूड है, दिस टाइम इज़ मोर, सो मोर टाइम माइनस लेस टाइम इज़ 3. यहाँ पे अगर गलती कर दी जल्दी में तो फिर पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा. सो नाउ इसको कैसे सॉल्व करना है. नाउ 480 दोनों में है, सो विल टेक 480 कॉमन. 480 कॉमन ले लो, वी आर लेफ्ट विद 1 upon x minus 8 इक्वल्स टू 3. ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके इसको x इंटू एक्स कर देंगे और इस वाली टर्म को x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 8 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, सो दैट वी गेट सेम डिनोमिनेटर. सो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है x से. देखो x माइनस 8 पूरी एक टर्म है तो ब्रैकेट में लिख के मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसको मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस x माइनस 8 से, एंड यहाँ भी x इंटू एक्स माइनस 8. ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 3. सो विल गेट 480, दिस इज x, करेक्ट, माइनस x माइनस 8 इंटू 1 इज x माइनस 8, लेकिन बाहर माइनस साइन है तो उसको पहले ब्रैकेट में ही रहने दो, बाद में नेक्स्ट स्टेप में ओपन करेंगे ब्रैकेट. यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, दिस इज x माइनस 8, वो ऐसे ही लिख देते हैं माइनस एक्स विदाउट ब्रैकेट दे राइट माइनस 8. सो माइनस एक्स माइनस 8 रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज व्हेन वी ओपन ब्रैकेट इट विल बिकम माइनस एक्स प्लस 8. ओके, एक मिस्टेक, छोटी सी भी मिस्टेक भारी पड़ेगी, पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. नाउ इसको मल्टीप्लाई कर लो. सो दिस इज x स्क्वायर माइनस 8x, हियर ऑल्सो इट इज x स्क्वायर माइनस 8x. सो सेम डिनोमिनेटर, विल राइट डिनोमिनेटर और ऊपर वाला सॉल्व करेंगे. ओके, सो ये गलती मत करना, इसको ब्रैकेट में लिखना x माइनस 8, देन नेक्स्ट स्टेप में ओपन करेंगे ब्रैकेट. सो x माइनस एक्स प्लस 8, बिकॉज आउटसाइड माइनस साइन, अंदर की साइन चेंज होगी, सो ये प्लस 8 हो जाएगा. सो ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है, फिर आंसर नहीं आता है ऐसे. ओके, सो ये x एंड x कैंसिल हो जाएगा. नाउ यू आर लेफ्ट विथ 480 इंटू 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. सो दिस इज 480 इंटू 8 इक्वल्स टू 3 इंटू, दिस इज फुल एक्सप्रेशन, तो उसको पूरा ब्रैकेट में लिखो. यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे गलती कर देते हैं, दे डोंट राइट इन ब्रैकेट एंड दे डू मिस्टेक देन, तो ऐसे ब्रैकेट में लिख लो. नाउ यहाँ पे हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. इफ़ यू सी 480 इज़ डिविजिबल बाई 3. ओके, सो कभी भी ऐसा रहता है, जैसे सिंपल मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ, 6 इंटू 10 इज़ 60, 6 इंटू 10 इज़ 60, और हमें कैसे 60 मिलेगा, 12 इंटू 5, करेक्ट, 12 इंटू 5 इज़ 60. तो अगर मैंने इस 5 को इधर ला के डिवाइड कर दिया
सो वॉट यू विल गेट 6 इंटू 10 इक्वल्स टू 12, और यहाँ के मैंने 5 को इधर ला के मैं डिवाइड कर सकती हूँ. यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड डिवाइड हो जाएगा. सो वॉट यू विल गेट 12 इक्वल्स टू 12. ओके, सो वाई वी कैन डू दिस, ये मैंने बता दिया. दिस इज़ 480 इंटू 8, दिस इज़ 3 इंटू, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है जो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है. सो यू कैन ब्रिंग 3 डाउन जस्ट टू सिंप्लीफाई. वाई आई एम ब्रिंगिंग दिस 3 डाउन, बिकॉज इट इज़ 480 is divisible by 3, just to make your calculation easy. तो ये कर सकते हैं ये स्टेप, बिकॉज 3 is multiplying with this full expression. ओके, इसको कट कर दो, इजी हो जाता है क्वेश्चन. 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 0 इंटू 8, इसको मल्टीप्लाई कर लो. 8 8 6 8 ज़ा 48. सो दिस इज़ 1280 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x. now ये जो राइट हैंड साइड है उसको इधर लिख लो और इसको उस तरफ लिख लो. सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 1280. नाउ ब्रिंग दिस 1280 दिस साइड. एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280. okay, now we'll use splitting the middle term to find it. now a is 1, b is minus 8, and c is 1 2 minus 1280. so we have product which is a into c, that is 1 into minus 1280. so product is negative. Sum which is b is minus 8. now in this case product is negative, means one number is negative, other number is positive, then only we have negative product. and sum is minus 8. अब एक नंबर नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, और सम माइनस 8 है, मतलब बड़ा नंबर नेगेटिव है. तो ये पिछले क्वेश्चन में प्रोडक्ट पॉजिटिव नेगेटिव था और सम पॉजिटिव रहता था पिछले दोनों क्वेश्चन में. इसमें तुम्हें अभी दूसरा केस मिलेगा इसमें, व्हेन प्रोडक्ट इज नेगेटिव एंड सम इज आल्सो नेगेटिव. बस क्या करना है, बड़े नंबर को नेगेटिव ले लेना है. फैक्टराइज 1280 और ट्रायल एंड एरर से फाइंड करेंगे. 1280, सो 2 से जाएगा 640, फिर से 2 से जाएगा, अगेन इट विल गो बाई 2, अगेन इट विल गो बाई 2. ओके, सो ये है. अब हम थोड़ा ट्रायल एंड एरर चेक कर लेते हैं. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64. हमें डिफरेंस चाहिए 8 ना. 64 बचा कितना, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20. नो, 64 एंड 20 से हमें 8 नहीं मिलेगा, तो थोड़ा और कम लेते हैं. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, यहीं तक लेते हैं 32. एंड दिस इज 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40. सो 32 एंड 40 विल गेट 8. या सो थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करना है, प्रैक्टिस से आ जाता है ये. सो 2 नंबर्स आर 32 एंड 40. सो हमें 2 नंबर्स मिल गए 32 एंड 40. क्योंकि सम नेगेटिव है तो बड़े नंबर को नेगेटिव ले लो. ओके, पिछले क्वेश्चन में सम पॉजिटिव था तो हम बड़े नंबर को पॉजिटिव ले रहे थे, इसमें हम बड़े नंबर को नेगेटिव लेंगे बिकॉज सम इज नेगेटिव. नाउ री राइट दिस. एक्स स्क्वायर माइनस 8x की जगह क्या लिखेंगे, प्लस 32x माइनस 40x, करेक्ट, माइनस 1280 इक्वल्स टू 0. टेक कॉमन, यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 32 बचेगा अंदर. अब सेम ही चीज़ उधर भी बचेगी. हमें यहाँ पे x प्लस 32 चाहिए, मीन्स माइनस 40 विल कम आउट. व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड, ओके, 40 इंटू 32 चेक कर सकते हो. 1280, ये माइनस साइन बाहर आ गया है. पहला वाला सही किया है तो ये जो ब्रैकेट में वही उधर ब्रैकेट में आएगा. ओके, नाउ टेक दिस ब्रैकेट एज कॉमन. सो x प्लस 32 इंटू x माइनस 40 इज 0. सो अगर ये 0 है तो आइदर x प्लस 32 इज 0 और x माइनस 40 इज 0. सो वहाँ से हमें मिलेगा x इज माइनस 32 और x इज 40. ओके, माइनस 32 पॉसिबल नहीं है. वाई, बिकॉज इट्स स्पीड कांट बी नेगेटिव, सो इट इज़ 40 किलोमीटर्स पर आवर. सो जो फर्स्ट केस था, दे हैव आस्क्ड व्हाट इज द फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर्स पर आवर. ओके, अभी नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला. सो वी गेट x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ
b square minus 4ac by 2a. So that is equal to minus of minus 8, it will become plus 8, plus minus root of minus 8 into minus 8 is plus 64. So minus 8 square, okay, next step में कर लेंगे, into 1 into minus 1280 divided by 2 into 1. So यहाँ से हमें मिलेगा plus 8 plus minus root of minus 8 into minus 8 plus 64, because minus minus plus हो जाएगा. Here also minus into minus plus. 4 0 0, 4 8 32, 4 2 8, 10 11. So 5120 divided by 2. So यहाँ से आएगा 8 plus minus root of, add 64 and that, you will get 8 5184 divided by 2. Okay, 5184 divided by 2. So we will find 5184 का root form. So 5184 पीछे से pairing कर लो. 51 is nearest to which square number? 5 5 is 25, 6 6 is 36, 7 7 49. Yes, it is nearest to 49, nearest and smaller than 7 7 is 49. So you are left with 2. Minus करो, bring this down. 7 का double, 7 into 2 14. Fill in the blanks. यहाँ पे 4 है तो 2 से try करेंगे, because 2 into 2 4 होता है. So 2 से try कर लो. Yes, we are getting 284. So 72 is root of 5184. So 2 zeros are 8 plus 72 by 2 or 8 minus 72 by 2. So यहाँ से हमें x की दो values मिलेंगी. x is 80 by 2, that is 40. यहाँ पे x की value negative आएगी. So ये हम discard कर देंगे, because speed can't be negative. So यहाँ इस, so by this method also you can calculate speed. So speed is 40 kilometers per hour. Thanks for watching.